first case is related to the skin and soft tissue infection. Before jumping to the case study, I would like to discuss the basics of the skin and soft tissue infection, microorganism, and the type of the organism which are involved in the most cases related to the skin and soft tissue infections. Okay, number one slide is about the type of skin and soft tissue infection. There are multiple types of the skin and soft tissue infections like cellulitis, erysipelas, impetigo, folliculitis, furuncle, or carbuncle. It is important to know the differences in between these skin and soft tissue infections. Cellulitis is a kind of an infection that is related to the dermis, and it is mostly found in the subcu or the SQ tissues that are mostly poorly demarcated. They are caused by the streptococcal or staphylococcal species that are gram-positive bacteria. Erysipelas is a kind of infection that is mostly seen on the superficial form of a cellulitis-like condition. They are sharply demarcated, properly वहाँ पे borders होंगे जहाँ पे वो बड़े-बड़े bullous formation होती है, and they are caused by the streptococcal infection. Then we have a impetigo, that is a lifting of striatum corneum, and they form a large bullous formation, and they are also caused by the streptococcal and staphylococcal bacteria. Then we have a folliculitis, that is, as the name indicate, they are caused the inflammation of the hair follicles, and they caused by staphylococcal infection. Then we have a carbuncle or furuncle. If the infection of the follicle, like as I discussed before, if they goes deeper and involves more follicles and involves the other adjacent part, they forms a carbuncle-like stage. That condition is mostly requires a drainage and incision, and that infection is also caused by staphylococcal microorganism. Then we have a different stages for the treatment of cutaneous abscess, furuncle, or carbuncle. Mild form requires incision and drainage, whereas moderate requires drainage and incision. But instead of that, the culture sensitivity is very important. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी होंगी तो आपको कल्चर सेंसिटिविटी मालूम होना लाजमी है. अकॉर्डिंग टू दैट यू विल स्टार्ट द एंटीबायोटिक्स. Like in the empiric cases, Septran is the best drug of choice. Doxycycline can also be used. लेकिन pediatrics में हमारे पास age criteria is very important. Doxycycline, minocycline, tetracycline are mostly not preferable in less than 8 years of age. Why? Because of causing a permanent tooth discoloration. Instead of that, we have another options of antibiotics. We can also use clindamycin for MESA, MSSA, diclofenac, or Keflex, that is cephalexin. In the severe cases, it is mostly considered as a severe at that time period if there is a failure of incision or drainage or course of oral antibiotic has been failed. There are different kinds of signs of systemic infection, like temperature greater than 38 degree, heart rate greater than 90, respiratory rate greater than 24. WBC's counts are also increased in that condition. Severe cases में हम immunocompromised patients को भी consider करेंगे. At that time period, we can also consider the incision or drainage. Culture sensitivity important होनी चाहिए, but the choice of antibiotics are different here. Like vancomycin will be considered as a first drug of choice for the MRSA coverage. Clindamycin can also be used, but instead of that, you should have to consider the hospital antibiogram, like local resistance. If there is an increased resistance, so you should not have to opt the option of clindamycin. If the local resistance is less than 10 to 15%, then you can go for the option of clindamycin. If MRSA, you should have to consider the vancomycin or clinda. In the case of MSSA, you can consider cefazolin, clindamycin, or nefcillin, etc. Then we have a cellulitis treatment. Cellulitis treatment भी further divide होती है into 3 main stages, that is mild, moderate, or severe infection. In the mild cases, there is no focus of purulence. Oral antibiotic mostly use करते हैं, जिसमें हमारे पास amoxicillin, cephalexin, clindamycin यूज होती है. क्लिंडामाइसिन उस वक्त भी हम यूज करते हैं इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन. पेनिसिलिन वीके, जो कि पेनिसिलिन ओरल हमारे पास अवेलेबल होती है, उसको भी हम यूज करते हैं. ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो माइल्ड इन्फेक्शंस में होती है वो 5 to 10 days तक की होती है. फॉर मॉडरेट इन्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा से सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स इन्फेक्शंस के आते हैं, जिसमें फीवर, चिल्स और मलेस इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे आईवी ट्रीटमेंट इज मोस्टली प्रेफरेबल, लाइक पेनिसिलिन जी, सेफ्ट्राइक्सोन, सीफाजोलिन और क्लिंडामाइसिन. Treatment would be 10 to 14 days. सीवियर इन्फेक्शन में मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे होते हैं. उनमें साइन एंड सिम्टम ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन मोस्टली ज्यादा होते हैं, एंड दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द पुरुलेंट इन्फेक्शन,
जहाँ पे पस्क्यूलर फॉर्मेशन मोस्टली इन्वॉल्व होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को भी हम सीवियर इन्फेक्शन में ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास आते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द मॉडरेट इन्फेक्शन। लाइक स्किन स्लफिंग हो रही होती है, हाइपरटेंशन सीवियरली होता है, पेशेंट हाईली सेप्टिक होता है, और ऑर्गन डिसफंक्शनिंग में जाते हैं पेशेंट, जो कि मेन हमारे पास इसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेप्सिस भी होता है। यहाँ पे ज्यादातर इमरजेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें इंसिजन और डिब्राइडमेंट रिक्वायर्ड होती है, जस्ट टू रूल आउट द नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। इंस्टेड ऑफ दैट एम्पेरिकली वेंकोमाइसिन यूज होती है अलॉन्ग विद दैट पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम फॉर द ग्राम नेगेटिव एंड एनोरोबिक कवरेज के लिए। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यहाँ पे इन्फेक्शन रिलेटेड होते हैं सीवियर इन्फेक्शन में, वो स्ट्रिप्टोकोकल पायोजीन्स होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 75% केसेस जो होते हैं वो एस पायोजीन होते हैं। रिमेनिंग एस ओडियस से होते हैं, जो कि मोस्टली मरसा होते हैं। बहुत ही कम रेयर स्पीशीज में एनारोबिक और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन्वॉल्व होते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी 10 to 14 डेज ही होती है। ओके, देन वी हैव अ केस स्टडी 1. Case study है, TP is a 16-month-old, weight 12 kg, admitted to the hospital for the worsening abscess on his right lower inguinal area. The abscess, which appeared 3 days ago, was initially treated at the physician's office with incision and drainage. The area around the abscess is warm and erythematous. The patient has a temperature of 39.2 degree, a WBC's count 20,000, and a CRP of 12.8 mg per deciliter, where the normal range is less than 0.1. The patient has also been receiving oral Keflex or Cephalexin for the past 48 hours. The wound culture from the physician's office is growing MRSA with the following sensitivities. इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इसमें है, एक तो सेंसिटिविटीज का होना, और सेंसिटिविटीज यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, जिसमें क्लिंडामाइसिन पॉजिटिव डी टेस्ट। पॉजिटिव डी टेस्ट का मतलब है कि रेजिस्टेंस बता रहा है कि क्लिंडामाइसिन हमारे पास रेजिस्टेंट है, डी टेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है। लीवोफ्लॉक्सिसिन, लेनिजोलिड, वेंकोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सल्फामिथॉक्सासोल, ट्राइमेथोप्रिम, और रेजिस्टेंट है एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सैसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से। Now we have a question, which antibiotic would be the best to initiate in the hospital given these sensitivities? तो इसमें अब हमारे पास वेंकोमाइसिन सेंसिटिव है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे वेंकोमाइसिन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सेल्यूलाइटिस। ये हमारे पास सीवियर इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है, तो वेंकोमाइसिन वुड बी द बेस्ट चॉइस। लेनिजोलिड की तरफ हम क्यों नहीं जाएंगे, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, और दूसरी तरफ ये वेंकोमाइसिन सेंसिटिव है, इट्स नॉट अ वीआरई, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम लेनिजोलिड की तरफ हमारे पास ऑप्शन ठीक नहीं होगा। सीफाजोलिन इज अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द MSSA। यहाँ पे ये मरसा रिपोर्ट हुआ है, और मरसा में वैसे भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो वेंकोमाइसिन होती है। क्लिंडामाइसिन इज नॉट अप्रोप्रिएट होगी, क्यों? क्योंकि इसका डी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, और ये ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो बाकी के जो ऑप्शंस हमारे पास इनकरेक्ट हैं, तो वेंकोमाइसिन वुड बी द बेस्ट चॉइस। Then we have a case study 1B, part 1B. Which oral antibiotic would you most likely recommend for the TP on discharge? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का एज 16 मंथ है। अब हमें जब उसको डिस्चार्ज करना है तो व्हाट वुड बी द आंसर? क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेनिजोलिड और सेप्ट्रान। तो आंसर वुड बी सेप्ट्रान। क्यों हमारे पास ओरल एंटीबायोटिक में सबसे बेस्ट है? अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया ग्रेटर देन 6 मंथ तक में हम सेप्ट्रान मोस्टली प्रेफरेबल करते हैं। इनसे छोटे बच्चों में हमारे पास सेप्ट्रान नहीं जाती, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्निक टेरस, हाइपरबिलीरुबिनीमिया, तो हम उसमें नहीं दे रहे होते। 16 मंथ तक का है ये बच्चा, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास इसमें ये सेफ एज क्राइटेरिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, दैट इज सेप्ट्रान। क्लिंडामाइसिन हम यूज नहीं यहाँ पे भी करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस हैं। सेम डॉक्सीसाइक्लिन यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 8 साल से छोटा बच्चा है, उसमें परमानेंट टूथ डिस्कलरेशन आएगी, तो उसमें ये हमारे पास एज क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। लेनिजोलिड ओनली रेजिस्टेंट, ओनली एज अ बेस्ट ड्रग चॉइस फॉर द VRE। अभी यहाँ पे मरसा है, तो ये सेप्ट्रान उसको कवर कर लेगा, तो लेनिजोलिड की तरफ हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी प्रिवेंट करना है। ओके, नेक्स्ट केस हमारे पास है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। केस स्टडी इनिशियली मैंने इसमें ऐड की है, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसकी बेसिक्स को डिस्कस करूंगी। DM is a 14-month-old girl that weighed 10 kg who presents to the physician's office with reports that has been fuzzy with rectal temperature of 39.8 for 2 days. Her medical history is unremarkable.
and her immunization are up to date. She has had a decreased appetite for the past 24 hours, but has had no nausea or vomiting. On examination, she appears well with no apparent source of the fever. A urinalysis back collection reveals the presence of leukocyte esterase, trace blood, WBCs, and moderate bacteria. Nitrites are negative. Now we have a question: what is the best empiric therapy for DM? Ciprofloxacin, nitrofurantoin, or Septran, that is sulfamethoxazole, along with trimethoprim, or the last option is amoxicillin Q12 only. There is a second part of that case study in which DM received a prescription for an oral antibiotic that has been taken for 3 days. She returns to the clinic today with continued fever and new onset of nausea and vomiting and severe low back pain. She is to be admitted to the hospital for treatment of presumed pyelonephritis, which is more appropriate to initiate at this time. We have an option that is ciprofloxacin, ceftriaxone, ampicillin, or piptaz, that is piperacillin tazobactam. But before that, we are going to discuss the basics of UTI. UTI is an infection of urinary tract. It involves multiple parts of the urinary tract system like urethra, bladder, or kidney. If there is an infection developed in the urethra, it will called urethritis. If it develops in bladder, that is known as cystitis, or if that infection is developed in kidney, that will known as pyelonephritis. Then we have a epidemiology. सबसे ज्यादा इंक्रीज रिस्क हमारे पास यूटीआईज का आता है, वो आता है 2 months to 2 years of एज में. फीमेल्स में ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू द मेल्स. और इंक्रीज रिस्क आपके पास यूटीआई का जब भी आता है अगर पेशेंट हमारे पास में फिब्राइल होता है तो उसमें इंक्रीज चांसेस हमारे पास होते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट, रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास डिफरेंट इथेनिसिटीज आ जाती हैं, जिसमें व्हाइट रेस, ब्लैक रेस आ जाती हैं. वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन उनकी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस उनके बॉडी में होंगे, उनमें भी चांसेस हो सकते हैं कि डेवलपमेंट इंक्रीज होती है यूटीआई की. एज यंगर देन 12 months, टेम्परेचर ग्रेटर देन 39 डिग्री, वहां पे भी फिब्राइल है तो वहां पे इंक्रीज चांसेस होते हैं कि वो यूटीआई की तरफ मूव करता है. एब्सेंस ऑफ अनदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन अगर आपके पास इसमें नहीं है, इसके बावजूद भी अगर फीवर अगर आपके पास इसमें डेवलपमेंट है तो वहां पे भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं. दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई. अनसर्कमसीजन, अनसर्कमसाइज्ड बच्चे हैं उसमें भी मेल्स में इंक्रीज रिस्क होता है. इंस्टेड ऑफ दैट, हमारे पास फर्स्ट ऑफ द एज ऑफ द लाइफ में भी सबसे ज्यादा इंक्रीज चांसेस होते हैं यूटीआई के, जो कि आपके पास अलॉन्ग विद द फीवर इंक्रीज रिस्क होता है कि वो किडनी इन्वॉल्वमेंट भी होती है. देन वी हैव अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया होता है, पॉजिटिव कल्चर्स होते हैं, समटाइम वहां पे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स वहां पे साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. 3 months और यंगर में इंक्रीज रिस्क हो सकता है आपके पास. एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस मोस्टली उन बच्चों में ज्यादा होता है जिनका एज क्राइटेरिया 2 to 6 years तक में होता है, तो वहां पे किडनी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास ज्यादा होती है. सिस्टमिक डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जिसमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 डिग्री, हाइपोथर्मिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, इरिटेबिलिटी. यूजुअली जो हमारे पास यूरिन सैंपल्स आते हैं वो ज्यादातर क्लाउडी होते हैं, मेलोडियस यूरिन स्मेल होती है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी होती है और हेमेचूरिया वगैरह भी मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपोर्टेड होता है. देन वी हैव अ कॉजेस. मोस्टली जो यूटीआईज होते हैं दे आर बैक्टीरिया रिलेटेड, जिसमें 70% मोस्ट ऑफ द केसेस में इकोलाई होता है. इंस्टेंट ऑफ दैट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व लाइक क्लैप्सिला नमूनी. न्यूनेट्स में सबसे ज्यादा जीबीएस इन्वॉल्वमेंट होती है. अडल्ट में ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव एडोलेसेंस में सेप्रोफाइटिक्स होते हैं. रेयर केसेस में प्रोटियस मेरेबिलस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. अगर पेशेंट का कोई भी कंजेनाइटल यूरिनोजेनाइटल एनाटमी है या कोई प्रेजेंस ऑफ द यूरिनरी कैथेटर है, कैथेटराइज है पेशेंट, तो वहां पे इंक्रीज रिस्क होता है कि सुडोमोनास एरोजिनोसा वहां पे ग्रो करता है और वो यूटीआई के कॉजेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होता है. देन वी हैव एंटेरोकोकस फेकालिस, एस ओरियस और कॉन्क्यूलेस नेगेटिव और स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं. But instead of that, UTI can also be caused because of fungal infection like Candida albicans. Viral हो सकता है जिसमें BK वायरस और एडिनोवायरसेस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. ये जो ज्यादातर हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं दे आर मोस्टली हमारे म्यूकोजल सरफेस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक पे बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा में होते हैं. जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी पेशेंट हमारे पास इसमें होते हैं तो उनमें इंक्रीज रिस्क होता है कि वो डेवलप कर जाए इनटू द डिजीज स्टेट में. देन वी हैव अ डायग्नोसिस.
डायग्नोज किस तरह से यूटीआई को यूटीआई हम कर सकते हैं कि पहले तो एक यूरिन कल्चर्स के थ्रू होता है जिसमें सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन और यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन मोस्टली हमारे पास एज अ गोल्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें से यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज मोर प्रेफरेबल होती है ओवर यूरिन बैक सैंपल्स के। क्यों? क्योंकि वहां पे इंक्रीज कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सीएफयू बैक्टीरिया की भी डिफरेंट होती है। इंस्टेड ऑफ दैट यूरिनालिसिस हमारे पास गोल्ड टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ यूटीआई, जिसमें मल्टीपल हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्राइट्स, प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट ईस्टरेजेस एक्सेट्रा, तो उससे भी हमें यूटीआई का डायग्नोसिस मिल रहा होता है। देन वी हैव अ कॉम्प्लिकेशंस। इंपॉर्टेंट क्यों है कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करना है कि ज्यादातर हमारे पास यूटीआई के केसेस आते हैं वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ, डिफरेंट कंडीशंस की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज हो रही होती हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस को यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, परसिस्टेंट और रीअकरेंट यूटीआई की वजह से रीनल स्कारिंग हो सकती है, प्रोग्रेशन ऑफ द सीकेडी की तरफ जा सकते हैं विद रीअकरेंट यूटीआईज, वीयूआर वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लक्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर होता है, ये ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिसमें परसिस्टेंट और रीअकरेंट फिब्राइल यूटीआईज हो रहे होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर टू रिपेयर द डिफेक्ट इन द वेल्व इन बिटवीन द ब्लैडर एंड इन ईच अफेक्टेड यूरेटर, जो कि ज्यादातर हमारे पास इसमें बच्चों में फिब्राइल यूटीआईज में प्रोसीजर में वो जा रहे होते हैं, और रीनल स्कारिंग के भी रिस्क इसमें इंक्रीज हो जाता है। देन वी हैव अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यूटीआई की मोस्टली हमारे पास रिकमेंडेड होती है अगर लेस देन 3 मंथ्स तक के बच्चे हैं जिसमें इंक्रीज रिस्क है, तो वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन मोस्टली रिक्वायर्ड होती है, और आईवी एंटीबायोटिक्स हमारे पास उसमें प्रेफरेबल होती है। फॉर सिस्टाइटिस ओरल और आईवी एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड, ड्यूरेशन जो होती है वो 7 to 10 डेज तक होती है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अगर है जहाँ पे किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे भी ओरल और आईवी कैन बी यूज, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है दैट वुड बी 10 to 14 डेज। यहाँ पे ओरल अगर पेशेंट ले रहा है तो हम उसको ओरल भी दे सकते हैं। देन वी हैव अ चार्ट ऑफ एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स जिसमें सीफोटेक्सीम, सेफ्ट्रायोक्सोन, जेंटामाइसिन और पाइपरासिलिन आती है। सेफ्ट्रायोक्सोन इज मोस्टली नॉट रिकमेंडेड इन लेस देन 4 वीक्स ऑफ द एज और इन अप to 1 month because of increased risk of cardiac arrest or hyperbilirubinemia. Then we have another chart that includes Septran, amoxicillin clavulanic acid, cefixime, cefalexin, cefpodoxime, cefuroxime, nitrofurantoin और ciprofloxacin. नाइट्रोफेरेडाइन मोस्टली हमारे पास प्रोफाइलेक्सिस में होती है बट इट इज नॉट रिकमेंडेड मोस्टली इन फिब्राइल इन्फेंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अचीव नहीं होती है और इसके अपने भी मल्टीपल एडीआरस होते हैं, तो दैट्स व्हाई नाइट्रोफुरेंटोइन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, देन वी हैव अ इवैल्यूएशन। एंटीबायोटिक अगर हमारे पास इसमें यूज हो गया, अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि यूटीआई ट्रीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो वी हैव अ डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स और डिफरेंट डिटेक्शंस पैरामीटर लाइक आरबीयूएस, रीनल एंड ब्लडर अल्ट्रासोनोग्राफी। उससे क्या चीज हमारे पास डिटेक्ट होती है, वो इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनाटॉमिकल एनॉमलीज और रीनल स्कारिंग, और यूजुअली ये रिकमेंडेड होता है हमारे पास इसमें फर्स्ट 2 डेज में। ये रिकमेंडेबल नहीं होता अगर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास इसमें मिक्स्ड रिजल्ट आपको देता है। वीयूआर सिस्टोग्राफी भी हमारे पास रिकमेंडेड इनिशियल स्टेजेस में नहीं होती है आफ्टर द फर्स्ट यूटीआई। अगर मल्टीपल रीअकरेंट यूटीआईज हो तो वहां पे वीयू वॉइडिंग सिस्टोग्राफी रिकमेंडेड मोस्टली होती है। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास जो आरबीयूएस होती है ये उस वक्त भी हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें डिटेक्शन करवानी हो किसी भी एबनॉर्मेलिटी के लिए, तो उस वक्त भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस। अगर हमारे पास यूटीआई है, रीअकरेंट हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास मोस्टली रिकमेंडेड होती है कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रोफाइलेक्सिस हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक गाइडलाइंस ने भी रिकमेंड किया है कि प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट मोस्टली इफेक्टिव होती है। प्रोलॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस जो होती है कि ज्यादातर हमारे पास जो चांसेस होते हैं रीनल स्कारिंग, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी डिक्रीज करवाते हैं। जिसमें प्रेफरेबल ड्रग्स हमारे पास आती हैं सेप्ट्रान, एमोक्सिसिलिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और कीफ्लेक्स दैट इज सीफालेक्सिन। इसमें एज क्राइटेरिया देखना होगा, अगर लेस देन 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसमें हम सेप्ट्रान को प्रेफरेबल नहीं करेंगे कंसिडर, उसमें हमारे पास एमोक्सिसिलिन इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस आएगी। अगर हमारे पास एज क्राइटेरिया उससे ज्यादा का है तो वहां पे हम सारी मेडिकेशंस को कंसिडर कर सकते हैं।
ओके, देन वी हैव अ केस स्टडी 2 जो कि इनिशियली मैंने रीड की थी। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेप्ट्रान का है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे पास 14 मंथ से ज़्यादा का है, लेस देन 6 मंथ का हमारे पास मेनली कट ऑफ है। तो यहाँ पे हम इसको सेप्ट्रान कंसीडर कर सकते हैं और ओरली भी इसको दे सकते हैं अगर पेशेंट हमारे पास इसमें ओरल ले रहा है तो 40 mg की डोज होगी। 5 टू 20 mg पर केजी पर डे ट्राइमेथोप्रिम बेस पर इसकी डोज कैलकुलेट होती है और Q12 पार्ली तक हम इसको डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं। देन वी हैव अ केस स्टडी 2 जिसमें हमारे पास प्रिज्यूम पाइलोनेफ्राइटिस है और ओरल एंटीबायोटिक वो ऑलरेडी ले चुका है 3 दिन तक। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन है आईवी एंटीबायोटिक्स का। तो यहाँ पे जो बेस्ट एंटीबायोटिक्स हमारे पास जो कवर करेगी वो है सेफ्ट्रायक्सोन वंस डेली डोजिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस है फंगल इन्फेक्शन। Fungal infections are the multicellular eukaryotic organism that are ubiquitous eukaryoid. मोस्टली हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं फंगस की, जिसमें कैंडिडा और एस्परजिलस सबसे ज्यादा हमारे पास बच्चों में प्रिवेलेंट होता है। डिफरेंट हमारे पास कैंडिडा की स्पीशीज आती है, लेकिन कैंडिडा एल्बिकेंस और कैंडिडा पेरेप्सिलोसिस ये मोस्टली हमारे पास इसमें पीडियाट्रिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। कैंडिडा पेरेप्सिलोसिस जो होता है वो ज्यादातर हमारे पास न्यूनेटल कैंडिडियासिस के केसेस कॉज करवाता है। 80 to 90% जितने भी केसेस होते हैं हमारे पास इन्फेक्शन के इन द पीडियाट्रिक्स में और इन द न्यूनेट्स में वो रिलेटेड होते हैं टू द कैंडिडा पेरेप्सिलोसिस से। देन वी हैव अ रिस्क फैक्टर फॉर द इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडियासिस के रिस्क फैक्टर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द एस्परजिलोसिस। कैंडिडियासिस अगर होता है बच्चों में तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो प्रीमेच्योर है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है, इम्यूनोसप्रेशन है, प्रेजेंस ऑफ एनी इन डेवलपिंग कैथेटर्स हैं, यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा आपका डिस्टर्ब हो गया है, पेरेंटल न्यूट्रिशन है जहां पे क्लेप्सी इन्फेक्शंस मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी इंक्रीज रिस्क होता है कि इन्वेसिव कैंडिडियासिस इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। देन वी हैव एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस मोस्टली हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में डेवलप होते हैं, जिसमें ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स आ जाते हैं, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, स्टेम सेल और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी के पेशेंट जिसमें ऑलरेडी इम्यून आपके पास कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज है या जॉब सिंड्रोम है। ये हमारे पास दो एक तरह की कंजेनाइटल और रेयर डिजीजेस होती हैं, जिसमें हमारे पास जॉब सिंड्रोम इट्स अ काइंड ऑफ हाइपर आईजीई सिंड्रोम होता है, जिसमें ज्यादातर हमारे पास स्किन इन्वॉल्वमेंट आती है और स्किन स्टफिंग वगैरह होती है। इंस्टेड ऑफ दैट क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस हमारे पास जो इन्फेक्शंस आते हैं ये यूजुअली हमारे पास कंजेनाइटल इन्फेक्शंस आते हैं, जिसमें ओन डब्ल्यूबीसीज ऑफ द बॉडी जो हमारे पास इसमें होते हैं वो इनइफेक्टिव होते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। तो ये भी हमारे पास एक तरह की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन के अंदर ही आ जाते हैं। ओके, देन वी हैव अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में हमारे पास अगर कैंडिडियासिस होता है तो उसमें ज्यादातर जो रिप्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आती हैं वो आती हैं फीवर। फॉर एस्परजिलोसिस में नॉन स्पेसिफिक होती हैं, फीवर होता है, लेकिन इंस्टेंट ऑफ दैट हमारे पास उसमें डिफरेंट और भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आती है, लाइक पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस, स्किन मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं। पल्मोनरी साइड पे कफ, डिस्पनिया, चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस आ जाता है। देन वी हैव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें कैंडिडियासिस को किस तरह से रूल आउट करेंगे बाय अ ब्लड कल्चर। अगर पॉजिटिव आता है फॉर एग्जांपल न्यूनेट्स में, तो मोस्टली प्लान होता है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो लंबर पंक्चर का होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन पास फ्रॉम ब्लड टू सीएनएस, तो वहां पे हो सकता है कि वो फंगल मेनिंजाइटिस कॉज करवा दे, तो एलपी करवाना लाजमी होता है। इंस्टेंट ऑफ दैट डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन फंगल बॉल्स के लिए, कि वो इंक्रीज रिस्क होता है फंगल इन्फेक्शन का कि वो किडनी को हिट करते हैं, आई को हिट करते हैं, तो मोस्टली वहां पे हमारे पास रेटिनल एग्जामिनेशन प्रेफरेबल होती है। इंस्टेड ऑफ दैट यूरिन कल्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, कि ब्लड कल्चर में एक तो फंगल आपने ग्रोथ देख ली, इसके अलावा बाज दफा यूरिन कल्चर भी हम लाजमी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज इंक्रीज रिस्क है ब्लड कल्चर से भी वो आपके पास इसमें एक्सपेंड हो के दूसरी जगहों पे भी वो स्प्रेड हो जाता है। उसके लिए भी यही सेम स्पेसिफिकेशन है कि अगर न्यूनेट्स में या पीड्स में भी अगर ये पॉजिटिव आता है तो लंबर पंक्चर की तरफ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं और रेटिनल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। इंस्टेंट ऑफ दैट पीएनए फिश टेस्ट करवाते हैं, जो कि पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड फ्लोरेसो
फ्लोरेसेंट इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे पास ज्यादातर जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है और ये हमारे पास जीन चेंजेस इन सेल्स को डिटेक्ट करती है। इंस्टेंट ऑफ दैट अगर एस्परजिलोसिस इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें ब्लड कल्चर मोस्टली इन्वॉल्व होता है। गैलेक्टोमेनान जो कि मेन हमारे पास डायग्नोस्टिक पैरामीटर होता है फॉर द फंगल इन्फेक्शन के लिए। पीसीआर टेस्ट होते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ होते हैं जहाँ से आपको एक्सरे से पता लगता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं। सीटी स्कैन होता है फॉर द निड्यूलर लीजन्स वगैरह की डिटेक्शन के लिए। ओके, देन वी हैव अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस। अगर न्यूनेटल या पीडियाट्रिक कैंडिडियासिस होता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस एंटी फंगल की कौन सी आती है? एम्फोटेरिसिन बी। फ्लूकोनाजोल, अगर एम्फोटेरिसिन बी यूज कर रहे हैं और अगर क्रिएटिनिन आपका डी रेंज है यानी कि किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल फॉर्मुलेशंस आती हैं एम्फोटेरिसिन बी की, जिसमें लाइपोसोमल आती है, लिपिड फॉर्मुलेशन आती है जिसमें क्रिएटिनिन डी रेंज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ऑल दो वो कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन उसके एडीआर्स कम होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर क्रिएटिन बहुत ज्यादा डीरेंज्ड होता है तो वी हैव अनदर ऑप्शन कि आप एम्फोटेरिसिन को स्विच भी करवा सकते हैं टू अनदर ड्रग्स जिसमें अजोल्स आ जाते हैं जो कि हेपेटिकली मेटाबोलाइज्ड होते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली एकाइनोकेंडेंस को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि इसके अपने एडीआर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट सीवियर इम्पेयरमेंट कॉज करवाता है और हेपेटिकली मेटाबोलाइज्ड होता है। और इंस्टेंट ऑफ दैट एक और इसका रीजन होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सीएनएस और यूटीआई में बहुत ही कम होती है। दैट्स व्हाई हम एकाइनोकेंडेंस को मोस्टली भी रिकमेंड नहीं करते हैं। फ्लोसाइटोसिन कैन बी कंसीडर फॉर द डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस में होता है जिसमें सीएनएस और यूटीआई इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें फ्लूसाइटोसिन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये लाइन रिलेटेड कैंडिडियासिस है तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कि आपने सीवीसी लाइन है या सीवीपी है, पिक लाइन है, उसकी रिमूवल करवाएं ताकि जो मेन सोर्स है आप उसको रिमूव करवाते हैं। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितनी होती है? मोस्टली 2 वीक्स होती है आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ कैंडिडा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि 2 कल्चर्स आपके नेगेटिव होने चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट कल्चर और क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स भी आपके इम्प्रूव हो। फिर उसकी जो एंटीबायोटिक से पूरी थेरेपी होती है वो आपकी उसकी ड्यूरेशन तक यूज होती है। देन वी हैव अ कैंडिडियासिस इन द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। वो हमारे पास स्पेसिफिकली न्यूनेट्स के लिए था, उसमें भी हमारे पास मोर और लेस सेम ही एंटीबायोटिक्स एंटी फंगस यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइसेस और जो क्लासेस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। इन द पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मोस्टली एकाइनोकेंडिन्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पीडियाट्रिक्स में होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कम होता है एज कम्पेयर टू द न्यूनेट्स, क्योंकि न्यूनेट्स में भी हमारे पास प्री टर्म और टर्म बच्चे आते हैं और उनमें मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स मेडिकेशन की डिफरेंट होती है। बहुत ज़्यादा सीवियर अगर इन्फेक्शन हमारे पास है या बहुत सीरियस इलनेस है तो एकाइनोकेंडिन्स कैन बी यूज्ड एज अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास फॉर द पीडियाट्रिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कैस्पोफंगिन आ जाती है। माइकाफंगिन कैन आल्सो बी यूज्ड। एनिडोलाफंगिन यूज़ हो सकती है लेकिन इसका स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया जो कि 2 टू 17 इयर्स ऑफ एज में यूज़ होते हैं और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। फ्लूकोनाज़ोल हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द लेस सीवियरली इल पेशेंट में, लाइक मॉडरेट टू सीवियर में यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास ये उस वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस में होती है जिसमें इनिशियली हमारे पास जैसे पेशेंट नाइव है, उनको पहले कभी भी अज़ोल्स मिली नहीं है, तो उसमें इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वी कैन आल्सो यूज़ एम्फोटेरिसिन बी जिसमें कन्वेंशनल लिपिड फॉर्मुलेशन और लाइपोसोमल भी यूज़ हो सकती है। देन वी हैव अ ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेसिव एस्परजिलोसिस जिसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास वोरिकोनाज़ोल की, जो कि वोरिकोनाज़ोल इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होती है। इनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है ड्रग की वो भी क्लीयरेंस अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम यूजुअली वोरिकोनाज़ोल को प्रेफर करते हैं फॉर द इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में ओवर लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास इसके कुछ एडीआर्स आते हैं जो कि मॉनिटर करना लाज़मी होते हैं, जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, रैश, विजुअल हैलुसिनेशंस कॉज़ करवाते हैं। अगर हमारे पास एलिप्टीज़ डी रेंज होंगे, तो वोरिकोनाज़ोल की मोस्टली डोज़ एडजस्टमेंट होती है। इसके ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स भी होते हैं, लेकिन ये आई थिंक बाहर होते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लिवर फंक्शन टेस्ट इसके मॉनिटर कराने होंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन होंगी फॉर द विजुअल डिस्टर्बेंस के लिए और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो कि टीडीएम में हम इसकी करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में इट्राकोनाज़ोल का होता है, जो कि मोस्टली इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में यूज़ होता है और अगर पेशेंट में क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है, इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन हमारे पास इसमें है, तो उसमें हम इट्राकोनाज़ोल मोस्टली यूज़ करवाते हैं, जिसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, कैस्पोफंगिन और माइकाफंगिन वुड बी द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस।
Okay. आई थिंक इसकी केस स्टडी यहाँ पे इसमें मिस हो गई है. मैं वर्बल केस स्टडी को रीड कर देती हूँ. ओके, केस स्टडी हमारे पास जो एंटी फंगल की है. First case study here, a 14-year-old woman with AIDS has been recently diagnosed with systemic candidiasis due to Candida krusei, and an IV antifungal treatment has been prescribed. 4 days later, the following lab results were obtained. Serum creatinine 3.9 mg per deciliter, blood urea nitrogen is 53 mg per deciliter, or plasma potassium is 2.3 millimole per liter. Which of the following drugs was most likely prescribed? अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. पहली चीज तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिनिन का डीरेंज हुआ हुआ है और पोटेशियम प्लाज्मा पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है. तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास है जिसमें फ्लूसाइटोसिन, ग्रेसियोफल्विन, फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन भी है. तो इसमें ऐसी कौन सी ड्रग थी जो कि प्रिस्क्राइब हुई थी जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसके जो लैब रिजल्ट है वो डीरेंज्ड हुए. तो आंसर वुड बी एम्फोटेरेसिन बी, क्योंकि इट्स अ हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग और यूजुअली ये हमारे पास हाइपोकेलीमिया कॉज करवाती है. तो जब भी कभी एम्फोटेरेसिन बी हमारे पास यूज होती है उसमें लैब वैल्यूज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो क्रिएटिनिन को क्योंकि इटसेल्फ वो नेफ्रोटॉक्सिक है, और दूसरा एम्फोलाइट जिसमें पोटेशियम, क्रिएटिनिन और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर ये लो होते हैं तो इसके टॉक्सिसिटी के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. तो जब भी हमारे पास एम्फोटेरेसिन कहीं पे यूज होती है तो इटसेल्फ जब वो हाइपोकेलीमिया कॉज करवाती है तो आपको पोटेशियम रिप्लेसमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, केस 3B है हमारे पास. A 7-year-old girl is brought to the physician by her mother because she has several small hairless patches on her scalp. Upon close physical examination, patches look like black dots on the skin surface. Microscopic examination reveals a dense sheet of spores around the hair. Which of the following drugs given orally would be an appropriate treatment for this patient? हमारे पास ऑप्शन है एसाइक्लोविर, मेट्रोनिडाजोल, एम्फोटेरेसिन बी, फ्लूकोनाजोल और ग्रेसियोफल्विन. तो हमने ओरल यहाँ पे कोई भी इसको एंटी फंगल देनी है. एज अ ऑप्शन हमारे पास जो है जिसमें एम्फोटेरेसिन बी है, ग्रेसियोफल्विन है, एसाइक्लोविर है. एसाइक्लोविर इटसेल्फ हमारे पास एंटीवायरल है तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे. इसके अलावा एम्फोटेरेसिन हमारे पास आईवी फॉर्म में आती है तो ये भी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है. मेट्रोनिडाजोल हमारे पास इसको कवर नहीं करेगी. तो हमारे पास ओरल में ग्रेसियोफल्विन वुड बी द बेस्ट चॉइस. तो हम इसको ग्रेसियोफल्विन दे सकते हैं. So it's all about today's presentation. Thank you so much for your precious time. अगर आप लोग का कोई भी सवाल है तो you can ask me. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sabha, for such a detailed and a very, very well explained presentation. If anybody has a question, please leave it on the chat. I guess there aren't any questions yet. I would like to thank once again, I would like to extend thank you to all the speakers, all the moderators, and all the participants for investing their time and their efforts in making these preparatory classes a success.
We hope that these knowledge-rich classes will help our fellows equip themselves with the latest updates. May all of us succeed in trying to uplift each other and this profession. This is a huge, huge contribution from giving back to pharmacy in Pakistan towards all the fellow pharmacists. And on this note, I would like to end this session. Thank you so much once again.